मुस्कुरा के देख, मुस्कुराइए कि आप रोटरी में हैं, मुस्कुराइए कि आप रोटरी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जुनून में हैं। डिस्ट्रिक्ट 3250 के डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जुनून होस्टेड बाय रोटरी पाटलिपुत्रा। मुस्कुराइए कि आप रोटरी में हैं। अब तक हमने सुना था, कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो दोस्तों। आज मैं इसको निगेट करने वाला हूं। आसमान में सुराग नहीं हो सकता, हिंदुस्तान के आसमान में सुराग नहीं हो सकता जब तक इंडियन एयर फोर्स इज देयर टू डिफेंड इट। और इसका बर्निंग एग्जाम्पल 2019 जब अभिनंदन ने अपने मिग से F-16 को नीचे जमीन पर डाल दिया। हिंदुस्तान के आसमान में सुराग नहीं हो सकता। वी हैव आवर फर्स्ट स्पीकर एयर मार्शल सतीश पाल सिंह विथ अस, डेकोरेटेड विथ अति विशिष्ट सेवा पदक एवं परम विशिष्ट सेवा पदक, एंड हिज कंट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग ऑपरेशन पवन एंड ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन पवन 1987, when we went as Indian peacekeeping force in Sri Lanka, and Operation Safed Sagar 1999, Kargil war, joint operation with Indian Army. He has contributed tremendously in those two things. So before I present him before you, let's have his bio. An alumnus of Sainik School, Kanchpura, he joined the National Defense Academy in 1970 and was commissioned into the Flying Branch of Indian Air Force on December 7, 1974. He is a qualified flying instructor and has flown over 6,800 hours on various aircraft. Air Marshal Singh commanded 2 premier transport squadrons and also served as chief flying instructor at the Flying Instructors School. The Air Marshal was the air officer commanding of Air Force Station Yelhunka in 2005 and conducted the prestigious International Air Show, Aero India. During his tenure as air officer commanding Air Force Station Yelhunka, besides completing the routine task of training of transport and helicopter pilots, he led his team of officers and airmen to discharge additional responsibilities entrusted to the station. An 32 aircraft and the 8 helicopter of the station played a key role in providing relief to the large population affected by tsunami. The air officer participated actively during Sri Lanka operations from 1987 to 1989 and in the cargo ops in 1999. For his distinguished service and achievements, he was awarded the Vayu Sena Medal for gallantry during cargo operations in 1999. Adi Vishisht Seva Medal in 2006 and was conferred the Param Vishisht Seva Medal by the President of India in January 26, 2013. On retiring from the IAF, after a distinguished service of 38 years as Air Officer Commanding-in-Chief, Southern Air Command Trivandrum, he is now a proud resident of Bangalore. Thank you. May I request Murli to escort our esteemed guest speaker, Air Marshal Satish Pal Singh. Sir, stage is yours. देवी और सज्जनों, नमस्कार, जय हिंद, and good morning. I'm grateful to the Master of Ceremonies of the day for having given such a wonderful introduction about me.
Rather than elevating me, it actually makes me nervous because he's spoken so much about me that some of the things were perhaps not known to me for many years. But let me assure you, I'm truly delighted to be here this morning to be addressing the Rotarians from Patna that comprises Rotarians from two states, Jharkhand and Bihar. Whilst I stand before you and thank Mr. Aneja, the erstwhile governor, district governor of Bangalore Rotarians, and Mr. Chachan, the present governor of Rotarians Patna, I'd like to also thank and introduce two of my friends, because of whom I'm here this morning. What transpired in my life and how they brought back to me is not relevant. But the fact is that I'm grateful to them for making their presence here this morning. And I'd like to introduce Dr. Tamim Ahmed. Tamim, kindly rise. He is a senior cardiothoracic surgeon and entrepreneur with illustrious career spanning over decades. He is a visionary in the field of healthcare, medical innovation, and surgical precision. To top it all, he was one of the cardiac surgeons looking after the late Dr. Manmohan Singh in his earlier tenure. There is a lot more to this gentleman. Besides being a cardiac surgeon of total precision, behind lies a very beautiful human being, of which I have been a very great beneficiary. And I'm sure this morning after our interaction here, you'll get a chance to meet him and his lovely wife, Dr. Saba. Saba, may I request you to rise, please? Ladies and gentlemen, give a big hand to Saba. Saba is an MD pharmacology. She's a member of advisory board of Cardiac Frontida and drug safety physician at Paraxel International. Thank you very much for being here this morning, Doctor. The subject of my talk military leadership, soldier, and the state. You often hear that Faujis are a different breed. So what makes them different? I think जिस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, जो हमारा वर्क कल्चर है, जो हमारा रहन सहन का स्टाइल है, और जिस तरह से हम पब्लिक के सामने पेश आते हैं और दुश्मन से बिहेव करते हैं, वही सब चीज़ें हैं जो कि हमको थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं आम लोगों से. पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है. ये ज़िंदगी भर की ट्रेनिंग होती है जो हमको बनाती है जो हम हैं. But what is important is in all this, behind all this, is the price that we pay when the balloon goes up, when the war is declared, a price of self-sacrifice. Historically, the criteria for military efficiency are very limited. They are very objective, very finite, and they differ a lot from other vocations, especially politics, which can be ill-defined, subjective, and ambiguous. So what is military leadership? The military profession organizes to overcome inherent fears and shortcomings, to always remember the uncertainty and chance involved in a war. Military trains us to choose the harder right instead of the easier wrong, to be always honest in our dealings so that we never tarnish the image of our organization and of this great nation, Bharat.
And it makes us the most efficient cog in the wheel that churns as a squadron in the Air Force, as a ship in the Navy, and as a regiment in the Army. Discharge of our responsibility requires cooperation and discipline. इसीलिए एक सोल्जर हमेशा टीम को ज़्यादा महत्व देता है, ना कि अपने विचारों को, अपने डिज़ायर्स को. उसके लिए सब कुछ जो भी है वो टीम एफर्ट है. एंड उसका काम है कि अपनी सोसाइटी को टू सर्व एज ए होल. So success for all this requires a certain value system. So what are the values that we imbibe and pride ourselves with? Could you check this out, please? चल पड़ा. इधर दबाना. इससे पहले कि मैं आपको हमारे वैल्यू सिस्टम के बारे में बताऊं, मैं आप सब लोगों को चाहूँगा कि ये मूल मंत्र हमेशा याद रखिए. राष्ट्र हमारी आस्थाओं, परंपराओं, मान्यताओं, सरोकारों का निष्ठा का केंद्र है. सरकारें आती हैं, जाती हैं, संगठन बनते हैं, टूटते हैं, मगर राष्ट्र अनंत है, अमर है. So here's our value system. Tradition, esprit de corps, unity and community, pride in self-esteem of the unit and the nation, जो कि हम कहते हैं नाम, नमक, निशान, which translated in English means duty, honor, country. These are the important value system that we imbibe and live with all our lives, and even try to do that post-retirement. आप लोग सोचते होंगे कि ये ऐसी चीज़ें तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि उसको कैसे किया जाता है. और मिलिट्री में इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हायरार्की, लॉयल्टी, ओबीडियंस and subordination. For a soldier, implicit obedience without questioning is the most important thing. Because अगर soldier logic apply करेंगे, तो वो टाइगर हिल या टोलो लिंक हिल के ऊपर जब ऊपर से तोपें चल रही होती हैं, धावा नहीं बोलेंगे. वो लॉजिक अपने लगाएंगे कि यार मेरी जान को फर्क पड़ सकता है. लेकिन वहाँ पे वो नहीं होता. वहाँ पे सिर्फ एक जुनून होता है कि ये मैं ड्यूटी कर रहा हूँ अपनी. उस ड्यूटी का जुनून है कि मैं अपने लिए नहीं, ये अपने देश के लिए कर रहा हूँ, अपनी फ़ौज के लिए कर रहा हूँ. और वो चल पड़ते हैं. बाकी जो होता है वो सब ऊपर वाले के हाथ में है. बट इतना ज़रूर है कि भारतीय सेना ने और बाकी हमारी वायु सेना और नेवी ने has always acquitted itself in the best possible traditions, our value system, and made sure that we always come victorious. Be it 71 war, be it the Kargil operations of 99, be whatever we helped Sri Lanka during the crisis in Sri Lanka or Pavan. So what are the attributes of leadership? There are many, many attributes. But I like to focus on a few of them. And those are character. To my mind, this is the most important. Professional knowledge and professional competence.
decision making and moral courage, loyalty, physical courage, and obedience, followed by discipline, another very, very important attribute. मेरे विचार में आदमी का character is one of the most important attributes. What does character do? It makes you decide what you ought to be, what you can be, and what you will be. क्या आप हो सकते हैं, क्या आप हैं, और क्या आपको होना चाहिए. ये आपका character decide करता है. This brings out the total persona in you as to how you interact with the society and for the nation. People with strong character are very honest, are very fair. They are very committed to their task and they do the best possible they can do. और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कैरेक्टर के बारे में. ये बड़ी पुरानी बात है, 1917 की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. वहाँ पे एक फ्रेंच जनरल थे मॉड, जिन्होंने मेसोपोटामिया में जाके इराक और बगदाद को कॉन्कर किया था. वे जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक देखा कि एक गडरिया अपनी बकरियों भेड़ों के साथ उनको चला रहा था. एक्सक्यूज मी. तो उन्होंने अपने इंटरप्रेटर को बोला कि इस गडरिया को बुलाओ और इससे कहिए कि अपने कुत्ते को पकड़े और उसको मार दे, मैं इसको एक शिलिंग दूंगा. उस ज़माने में 1917 की बात है ये, एक शिलिंग की वैल्यू इतनी ज़्यादा थी कि शायद वो अपनी आधी बकरी और भेड़ों का हर्ड खरीद सकता था. तो वो एकदम मान गया. अब आप सोचिए कि जो उसका कुत्ता होता है ऐसी गडरियों के पास या चरवाहों के पास, उसका काम क्या है? टू कीप द पैक सेफ, टू मेक श्योर द पैक स्टेज टुगेदर and to protect it from any predators. So, but this guy, for him, 1 shilling was more important than his own companion. तो उसने जी अपने कुत्ते को पकड़ा और जनरल साहब के पाँव में काट के रख दिया. अब जनरल साहब ने बोला इसको मैं एक और शिलिंग दूंगा, इस कुत्ते की आप खाल उधेड़ दो. उसने वो भी कर दिया. उन्होंने कहा मैं आपको एक और शिलिंग दूंगा, आप इसे टुकड़े टुकड़े कर दो. उन्होंने वो भी कर दिया. अब वो इतना लालची हो गया था कि वो कहने लगा जनरल साहब मैं इसको खा भी जाऊंगा, मुझे एक शिलिंग और दे दीजिए. तो जनरल साहब बोले बहुत हो गया. What I wanted to understand, he told his troops, was what is the character of this people of this nation. And he says as long as you have such people who are willing to sell and kill their most trusted companion, you don't have to fear anything. और अगर अपना आप इतिहास याद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम गुलाम क्यों रहे इतने बरस. क्योंकि उस ज़माने में भी और अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने देश को, अपने दोस्तों को, अपनी इंटेग्रिटी को, हर एक चीज़ को दांव पे लगा देते हैं ताकि अच्छा सा बंगला कैलिफोर्निया में या लंदन में या कहीं जाके खरीद लें. इस एट्रीब्यूट में हम लोग कहाँ खड़े हैं? I leave it all you to think about it. I think this is something that requires immense application. And क्योंकि मैं एक बहुत बड़े डाइवर्स क्राउड को एड्रेस कर रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जरूर मल कीजिए और अपने फॉलोअर्स को, अपने बच्चों को ये समझाइए कि नेशनहुड के लिए ये चीज़ होना सबसे महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल नॉलेज एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. Knowledge is the greatest weapon that you have. Knowledge is wealth. Knowledge is power. हमारे उपनिषद में, हमारे शास्त्रों में भी लिखा, knowledge को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है. And if you do not know what you're speaking, and if you do not know your professional competence, remember, you can never be a good leader. और जो professional knowledge है, professional competence है, वो आपको inheritance में नहीं मिलता. आप चाहे प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो, चाहे जनरल के वंशज हो या किसी बिजनेसमैन के हो, ये सब चीज़ें एक्वायर की जाती हैं हार्ड वर्क के साथ, 24/7 एप्लीकेशन के साथ. और इसका क्लासिक उदाहरण मेरे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिन्होंने ज़िंदगी भर अपना 24/7 टॉयल करके आज वो इस जगह खड़े हैं कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियक सर्जन इन दिस कंट्री.
It doesn't make things easy. It requires hard work and constant application and commitment. One of the reasons I invited my friend to be here with me this morning, because it's a classical example I can give you. एक मैं आपको और एक स्टोरी सुनाता हूँ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और मॉरल करेज के बारे में। ये 71 वॉर की बात है। मैडम गांधी के पास 3 स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर ने चिट्ठी डाली कि हमारे पास 1 मिलियन के करीब रेफ्यूजी आ चुके हैं और वी आर नॉट एबल टू मैनेज देम। तो उन्होंने उनसे कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे तो कहे क्या करें जी। उन्होंने आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई की। एंड शी टोल्ड हिम, General, why don't you do something? So he said, Madam Prime Minister, what do you want me to do? She said, I want you to enter East Pakistan. He said, Madam, that means war. Madam Gandhi says, I don't mind war. You know what he told her? This is what moral courage is all about. He says, Madam, if I go to war now, I will lose the war. ये अप्रैल के महीने की बात है। तब क्या होता है कि मॉनसून आने वाले होते हैं, नॉर्थ ईस्ट आ ही चुका होता है, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हार्वेस्ट चल रहा होता है और पूरी फौज बिखरी हुई थी। सो ही टोल्ड हर विद ऑल दीज थिंग्स इट विल टेक मी लॉट लेस देन 6 months टू गेट माई आर्मी ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बॉर्डर्स। और अगर आपने ये सारी ट्रांसपोर्टेशन मेरी मिलिट्री को इकट्ठा करने में लगा दी तो आपका अनाज जहाँ का तहीं पड़ा रह जाएगा और देश में भुखमरी हो जाएगी। मैडम गांधी डिडंट लाइक इट, but she had no choice. She told him, General, what do you want me to do? He said, Madam, I will do it for you in the month of December and assure you 100% victory. Rest you know the history. In 16 days, we created a new nation now known as Bangladesh. That was the classical example of professional knowledge, professional competence, and moral courage. Next attribute is decision making and moral courage, which are partly covered. Decision making is making up your mind, and once you have made up your mind, then you stand by what you have decided and live with it and make sure it becomes a success. Moral courage is to choose the harder right from the easier wrong. And once you have done that, then say so wherever you are, no matter what your superiors, your colleagues, or your subordinates think about it. You must live with that decision and that action that you take, and that's a true reflection of moral courage. इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आप सब उसे जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पे उसका इलस्ट्रेशन करता हूँ, एंड दैट इज एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। 70 साल से इस देश में द गवर्नमेंट ऑफ J&K had its own constitution. They had their own flag, and they decided everything about the internal matters of J&K. What was the result? Result was influx of terrorism. We lost hundreds and thousands of soldiers, civilians, and immense national wealth just because not so sure, not so confident governments of the day never took the decision, but which was overturned on 5th August 2019 by a very brave government. And you know what the results are today. मैं अभी पीछे जुलाई में गया था, हम ऑपरेशन विजय दिवस कारगिल का मनाने गए थे द्रास में, और फिर मैं रास्ते में से श्रीनगर वगैरह होते हुए आया। टोटल पीस प्रिवेल्स इन दैट वैली, पीपल आर रनिंग देयर एंटरप्राइजेस, टूरिस्ट की भरमार है उसमें। और पहले देखिए क्या होता था। हाँ, कुछ ना कुछ इनिमिकल एलिमेंट्स हैं जो अभी भी एक्शन करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी ये हमारे जो इंटरनल, जो मैं कैरेक्टर की बात कर रहा था ना, वो थोड़ा सा गैप है अभी भी, जिसको भरने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट अ लॉट हैज हैपेंड इन दैट स्टेट।
फिजिकल करेज एंड ओबीडियंस। फिजिकल करेज क्या है? जैसे मैंने पहले कहा, वो एक जवान ही है जो कि ऊपर से तोपें चल रही हों, गन्स चल रही हों, फिर भी वो पहाड़ी पे चढ़ के हमला करता है। आप लोगों को शायद इतना आभास ना हो, जितनी भी हिल्स हमने सॉरी जितने भी हाई फीचर्स हमने कारगिल में पाकिस्तान से वापस लिए, हर एक के ऊपर धावा रात में और नीचे से ऊपर को हुआ। अब इमेजिन आप एक टारगेट की तरह नीचे बैठे हो, ऊपर आ रहे हो, बंदा ऊपर गन लेके बैठा हुआ है, एनी टाइम कैन पिक यू एंड फायर एट यू। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है आर्मी के कि आप अपने ट्रूप्स के साथ जा रहे हो एंड सडनली अ गाय हु इज टॉकिंग नेक्स्ट टू यू, ही जस्ट फॉल्स, ही जस्ट गोस बिकॉज ही इज हिट बाय अ बुलेट। अब आप सोचिए आपके ऊपर क्या उसका इफेक्ट होता होगा। लेकिन सोल्जर्स रुकते नहीं हैं। ये टोलोलिंग हिल, टाइगर हिल, 0.5146, जुबार हिल, बत्रा टॉप, ये सब हमारे देश के यंगस्टर्स ने एवरेज एज 23 to 24 ने उस ऑपरेशन, 1-1.5 महीने के ऑपरेशन में सब पाकिस्तान से वापस लिए। उसके लिए हमको 556 of our braves sacrificed their lives. But I think, as a nation, the price was well paid for. और यहाँ पर मेरी आपसे एक अपील है कि आप वेटरन्स, स्पेशली आप लोग बहुत सारी वो करते हैं सोशल सर्विस, बट स्पेशली वेटरन्स who have been injured during hostilities. आपको, मैं जब कारगिल गया था, इमीडिएटली आफ्टर कारगिल वॉर, तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक आर्टिलरी शेल का कारगिल एयरपोर्ट पे इतना सा एक पीस मैंने उठाया। वो इतना तीखा था कि जैसे मैंने उसको हाथ लगाया, मेरी दोनों उंगलियों में छेद हो गए, एंड इट वॉज वेरी हैवी। तो आप सोचिए, जब एक आर्टिलरी शेल फटता है ना, कहाँ तक फैलता है, और अगर वो सोल्जर को बेचारे को कहीं भी लग जाए, ही कुड बी मेम्ड फॉर लाइफ। ये इन लोगों का आप जरूर ध्यान रखिए, ये मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, बिकॉज दे हैव गिवन व्हाट दे कैन, द बेस्ट फॉर देयर कंट्री। लॉयल्टी, निष्ठा जिसे हम कहते हैं, हम सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं लॉयल्टी अपने सबॉर्डिनेट से, बट क्या हम अपने कलीग्स या अपने जूनियर्स को लॉयल्टी देते हैं क्या? मुझे नहीं याद कि आप में से कितने लोग नायक हनुमंतप्पा को याद रखते हैं। एनीबॉडी हू रिमेंबर्स नायक हनुमंतप्पा? ऑलराइट, 2016 में एक एवेलांश आई थी 19,600 फुट पर, जहाँ पर नायक हनुमंतप्पा और उसके 6 कोलीग्स 35 फुट स्नो के नीचे दब गए थे। हनुमंतप्पा इसलिए फेमस है कि जब ये 6वें दिन उनकी बॉडी निकाली गई, वो अभी तक जिंदा थे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए, इन स्नो एट -35 degrees, 6 days without a movement, without much space to breathe, that man was still alive. But unfortunately, he did not survive. But what is important here is the CO of that unit. जब उनको पता लगा तो वो वहाँ पहुँच गए अपने ट्रूप्स के साथ। 3 दिन तक उन्होंने वो 35 फुट स्नो पूरी खोदी, जब तक कि उन्होंने हर एक सोल्जर को जो उनके मिसिंग हुए थे बाहर नहीं निकाल लिया। लास्ट सोल्जर वॉज हनुमंतप्पा। वहाँ पे ना तो उनके पास शेल्टर था, 19,600 फुट पे। मैं नहीं जानता हूँ आप में से कितने लोग 10 या 12,000 से ऊपर गए हैं। वहाँ पे पानी नहीं होता, आप स्नो मेल्ट करके पानी पीते हैं। वहाँ पे हरी सब्जियाँ नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है, ना आप नहाते हो ना आप शेव करते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। जो पहना है वही पहने रखो, और ऊपर से गोलियां चल रही हैं। जस्ट इमेजिन द plight of those people and plight of this man, the commanding officer, who made sure for 3 days that he digs out every soldier of his, the mortal remains or the life. And that is what is loyalty all about. That is what is loyalty. आखिर
आखिरी में डिसिप्लिन पे आता हूँ, जो कि हमारी एक धरोहर टाइप है, जो कि हमारा यूएसपी है, या हमें दर्शाता है जो फौज का डिसिप्लिन है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि लोग बात कहते हैं कि हम लोग थोड़े से हटके हैं, अलग होते हैं। व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज दिस सेंस ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या है? मिलिट्री डिसिप्लिन ही नहीं, डिसिप्लिन इज व्हाट एंड हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ इन द सोसाइटी, व्हाट सोसाइटल नॉर्म्स यू फॉलो। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये ना तो प्राइम मिनिस्टर एनलिस्ट कर सकते हैं, ना कोई गवर्नमेंट एनलिस्ट कर सकती है। ये हमारे पास हमारे शास्त्रों में, चाहे गीता लीजिए, चाहे होली कुरान लीजिए, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब लीजिए, चाहे टोरा लीजिए, कोई भी लीजिए, उन सब में ये ज्ञान दिया हुआ है। ये जो ज्ञान है, हम अपने आप बच्चों को आप फादर टू सन सिखाते हैं। इसके लिए कोई रूलिंग नहीं होती है, लेकिन इस जो ये एट्रीब्यूट है, इसमें हम लोग कहाँ पर हैं, हम अपनी जनरेशन्स को क्या सिखा रहे हैं और क्या हो रहा है। इसका मैं आपको उदाहरण सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जो कैरेक्टर है और जो हमारा डिसिप्लिन है, वो हर सुबह शाम रात हमारी रोड्स पे नज़र आता है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं मॉस्को गया था 1987 में, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। आई वॉज स्टेइंग ऑन द 8th फ्लोर ऑफ दैट होटल कॉस्मोस। ठंड बहुत थी, तो माई रूम वॉज हीटेड, और उस हीट में मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो रात को मैं 2-2:30 बजे उठा और मैंने अपनी खिड़की का पर्दा हटा के बाहर देखना चालू किया। और ऊपर मेरे साथ सामने वो 6 तरफा सड़क आ रही थी, और हर एक में रेड लाइट ग्रीन लाइट थी। मेरे देखते देखते एक कार आई और उसके सामने रेड लाइट थी, सिंगल कार, एंड ही स्टॉप्ड देयर। अच्छा, 2 मिनट तक वो मैं वॉच करता रहा, 2 मिनट तक वो लाइट रेड रही, 2 मिनट तक वो बंदा वहीं का वहीं फुल स्टॉप रहा। जब उसकी लाइट ग्रीन हुई तभी वह वहां से चला, बल्कि कोई और गाड़ी नहीं आई उसके पूरे 6 सड़कों पे। दिस इज व्हाट इज डिसिप्लिन ऑल अबाउट, दिस इज व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन। मैं नहीं जानता मेरे पास कितना टाइम है, लेकिन एक कैन आई कंटिन्यू? थैंक यू। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपना खुद का और देना चाहूँगा। मैं सियाटल गया था यूनाइटेड स्टेट्स बोइंग जेट खरीदने के लिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए खरीदे जाते हैं। वहाँ पे जब हम बोइंग वगैरह देख रहे थे, तो ये नेवी अपने P-8 खरीदने वाली थी। तो मुझे कहा गया कि आप उनकी एक एयरबेस को विजिट कीजिए। सो आई वेंट टू दैट एयरबेस, एंड देयर आफ्टर 2 days द CEO became friendly with me, and he tells me कि चलो I'll take you out and I'll give you a good treat. So we went out and he took his own car and he was driving. जब हम वापस आए तो उसका जो बेस का प्रोसीजर है ना, एंट्री का, सिक्योरिटी वाइज, वेरी सिंपल। At 100 meters there's a marker there, you switch off your headlight. At 50 meters you come and stop your car and switch on your cabin light, and that drive slowly at 20 kilometers and stop at the gate. वो सेंट्री आपको चेक करेगा और आपका पास देखने के बाद आप अंदर जाएंगे। अब वो CEO साहब थोड़ी खुशी में थे, तो बातें करते करते जी उन्होंने ना तो वहाँ रुके 100 मीटर पे और ना लाइट बुझाई, ना 50 मीटर पे कैबिन की लाइट ऑन करी, और हम लोग सीधा गेट पे पहुँच गए। अब देखिए वो संतरी क्या बोलता है। कहता है, इट सीम्स the colonel has forgotten the drill for entry into this campus. आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ पे एक जवान किसी मिनिस्टर को या किसी को ऐसे बोल सकता है? आपको ज्ञान होगा, एक बंदा शत्रुघ्न सिन्हा की शक्ल वाला हमारे पार्लियामेंट में घुस गया था सिक्योरिटी के थ्रू। तो एंड ही सेज वुड द कर्नल लाइक टू प्रैक्टिस वंस। तो कर्नल साहब ने पूरी गाड़ी वापस ली, 100 मीटर पे जाके अपनी बत्तियां बुझाई, 50 पे लाइट ऑन करी, और फिर संतरी के पास आए और पास दिखाया। You know what the sentry says? He says, I'm glad that the colonel got it right the first time. This is what is discipline all about. To conclude, ladies and gentlemen, मैं आपसे ये नहीं
impression छोड़ना चाहता कि फौजीज are anyway superior to their brethren. No, we come from the same blood stock, from the same mother and father that we all are. Only thing is we follow different vocations. but जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी कमिटमेंट है और जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारे अंदर जो आपका इस पूरे जो आपका प्रोग्राम उसका नाम है जुनून, वो एक जुनून पैदा करता है अपनी रेजिमेंट की इज्जत के लिए, इस देश की भक्ति के लिए और इस देश की सेवा के लिए. सोल्जर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपने देश को बचाना है, चाहे कैसा भी हो. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे मस्ट सर्व इन द बेस्ट कॉज ऑफ द सर्विस द वे दे आर ट्रेंड. बिकॉज इफ दे abjure the spirit of the service, they will not destroy only themselves, they will destroy their nation as well. Like religion subordinates a man to God, similarly, military subordinates a soldier to the service of his society. The soldier hones his skills day in and day out to be the best cog in the wheel, like I said earlier, and shares its characteristics with the religious order. Therefore, आपकी जो मिलिट्री है ना, वो बाबुओं जैसे बिहेव नहीं कर सकती, क्योंकि जिस दिन आपकी मिलिट्री बाबूडम की कल्चर में चली गई, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस देश का क्या होगा. So we have to follow a different culture. एक आखिरी चीज कहना चाहूँगा कि remember, a soldier does not fight because he hates the man in front of him. He fights because he loves his people behind him, his nation, and the flag of this nation. ये जो हमारा तिरंगा फहराता है ना, ये हवा के उसमें नहीं फहराता, ये फहराता है उस हर सर्विंग और वेटरन सोल्जर की आखिरी सांस पर, जिसने अपने देश के लिए वो अंतिम कुर्बानी दी. प्लीज रिमेंबर दैट. ये एक चार्ल्स प्रिंस ने योलॉजी लिखी है फौज के बारे में, and I leave you all with this. It is the soldier, not the reporter, who has given us freedom of speech. Sorry, freedom of press. It is the soldier, not the poet, who has given us the freedom of speech. It is the soldier, not the campus organizer, who has given us the freedom to demonstrate. It is the soldier who salutes the flag, who serves below the flag, and whose coffin is draped in the flag. ये उसका हिंदी वर्णन है. और आखिर में जाने से पहले मैं वहीं आ गया हूं जहां से मैंने शुरू किया था. Always remember the credo, which is not only for the military but for every nation-loving Indian. राष्ट्र हमारी परंपराओं पढ़ लीजिए प्लीज. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. We will share it. Please. I'll take that. So I wait here? Yeah. All right, I'll wait. Yes, stay back. Okay, okay. We would like to felicitate you. Thank you, sir. We really learned a lot about the nation, about the contribution of military men, and why do we stand here. We will love to felicitate you on behalf of District 3250 Rotarians. Please. Thank you, Sanjeev ji. Before
before we felicitate, we would like to invite Dr. Tamil Ahmed ji to please come here, Dr. Noor Saba ji, and Dr. Saba. And I also request our Rotarian Prem Mittal and Rotarian Vijay Jain from Rotary Patliputra to please come and first honor our guest speaker. DG Bipin, you also join here. I, sir ko. Prem, उधर आओ ना. ये इसको लेकर आओ. ये नहीं पहले ये शॉल उड़ाओ. Honor. So we welcome you all, Dr. Tamil ji. So एक जोरदार ताली अपने स्पीकर्स के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी बातें हमें बताई और हम Thank you, sir. Only please